Welcome back to my YouTube channel. Hello, everyone. My name is Pragya Bhardwaj, and I know I have not posted on my YouTube channel since so long, but from now, I'll try to be more consistent, and I'll try to talk to you all and discuss things with you all because I have been getting numerous and lots of messages कि प्रज्ञा मैम आप कब हमारे क्वेश्चंस का आंसर करोगे, आप कब हमें डिफरेंट कोर्सेज लेके आओगे, आप फिर से हमें पढ़ाओ यूट्यूब पे। तो अलग 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 डिमांड्स हैं। सो सिंस यू आस्क्ड, आई एम हियर बैक अगेन एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरे लेवल पे मैं आपको जितना भी हेल्प कर सकती हूँ, जितना भी गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको वो अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकूँ। So, I just need your support, your love, and whatever you need from me. I want you all to put that in the comment section कि मैम आप हमें ये बता दो, मैम हमें ये जानना है। जो भी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ कमेंट करो and I'll try to help you with that. Okay, so yes, before I go ahead, let me introduce myself in a better way for the people who are new to my channel or who are new here, who don't know me, who have never um, studied from me or anything. So, my name is Pragya Bhardwaj, and I have been in teaching profession for since approx 5 years now, and I have done my bachelor's BA in English from Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, and my master's MA in English from Savitribai Phule Pune University, Pune, Maharashtra. And with that, I have also cleared my MHSET, that is Maharashtra set, and I'm an assistant professor. I'm working as an assistant professor currently, and before that I have taught in various online platforms. I have taught many students for different competitive exams, and I know my students are there in all over India doing great, एंड आई वांट कि ऐसे ही और भी स्टूडेंट्स आए, और भी जो भी लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं एंड दे वांट टू गो एंड स्टडी इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। आई वुड लव टू गाइड देम ऑल जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है कि इंग्लिश में कौन सा मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी जाएँ, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, अगर CUET PG के लिए जाना है या CUET UG के लिए जाना है तो कैसे गाइडेंस लें। फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई एम हियर। ओके, so, yes, a few days back I had posted a Q&A on my Instagram story and asked you all to please ask me some questions so that I can answer them on my YouTube channel. Since I am posting this after so long, so I would like to start with this Q&A, and then आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग एंड व्हाटएवर आई वांट टू डिलीवर, वो सब के अकॉर्डिंग आगे हम यूट्यूब वीडियोस के साथ बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस क्वेरीज दैट आई गॉट ऑन Instagram. Okay, so um, the first question that I would like to address is someone has asked me that how we can start good communication in English. So, how can we start good communication in English? That means you want to be fluent while speaking in English, right? So, when it's about spoken English, and it's about fluency when you speak, there are many things that has to be kept in mind. So when it comes about spoken English, the basic thing that I tell each and everyone is that speak, है ना? Because what happens, हमें लगता है कि ओके मैं कुछ बोलूँगा या बोलूँगी तो सामने वाला तो मुझे जज कर लेगा। It doesn't matter. It doesn't matter at all. Because I'm telling you that being Indians, English is not our first language. ठीक है?
सो इट इज़ नॉट नेचुरल फॉर अस कि हाँ, हमें बहुत अच्छी इंग्लिश हम बोलना शुरू करेंगे तो एकदम बहुत अच्छी बोलेंगे, पॉसिबल नहीं है, ओके? इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। We try, we are trying. Even if I'm an English student, I have read English literature, but still I fumble, I get nervous. That doesn't mean कि मुझे आता ही नहीं है, right? The thing is, English is not our first language. It takes time for us to get a grip of that, right? So first of all, what I want you to say, focus on is that स्पीक, ओके? पहले बोलो, टूटी फूटी बोलो, गलत बोलो, बट बोलो। बोलने से क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा, ओके? सेकेंड थिंग दैट आई से इज ट्राई टू रीड पैराग्राफ्स। मैं अभी जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, ओके? इन डेप्थ हम आगे की और वीडियोस, अभी मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूँगी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड, ठीक है? तो हम स्पोकन इंग्लिश पे भी बात करेंगे, ठीक है? बट अभी मैं बेसिक अगर मुझे बताना है तो आई विल से दैट टेक वन पैराग्राफ एंड ट्राई टू रीड इट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ओके? और ये एक प्रैक्टिस बनाओ एंड ग्रेजुअली ग्रेजुअली यू विल सी दैट देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट। एंड मिरर से भी ज़्यादा आई वुड से दैट आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, सो वॉट यू हैव टू डू, जस्ट रिकॉर्ड योर सेल्फ इन सेल्फी कैम और बोलो, खुद को देखो, बोलो सेल्फी कैम में। एंड व्हेन then after 5 minutes or one paragraph, once you are done with one paragraph, listen to the whole video that you have recorded. You will get to know that where you are lacking behind, okay? जब वो पता चलेगा तो आप खुद ओके यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, चलो मैं यहाँ से इम्प्रूव करता हूँ, इस पे ध्यान देना है इस बार मुझे। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके, फॉर नाउ। एंड इन डिटेल मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी इसमें, ओके? एंड इससे रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आपको कुछ जानना हो या कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, ओके? एंड इफ़ यू नीड एनी कोर्स कि हाँ मैम आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स निकालो या कुछ ऐसा कुछ हो, तो यू कैन ऑल्सो टेल दैट टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन. I will try to work on that. Okay. Okay, so next question we have is hmm I have many questions. Let me choose कि कौन सा आपका आंसर करूँ, कौन सा वाला पहले करूँ. Uh, mm, mm, mm. Okay, one question is for graduation, post graduation syllabus, and for entrance exam, MA in English. So I think for graduation, post graduation syllabus. So I assume कि आप ये ग्रेजुएशन का मतलब आप एंट्रेंस के लिए मांग रहे होगे सिलेबस, राइट? कि CUET UG इंग्लिश में अगर जाना है तो उसके लिए तैयारी के लिए क्या क्या सिलेबस है, एंड CUET PG में अगर जाना है एंट्रेंस के लिए तो उसके लिए क्या क्या सिलेबस है, ओके? ओके, एंड ऑल्सो यू नीड टू नो अबाउट ओके। अब अगर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ तो एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET UG का अलग सिलेबस है, CUET PG का अलग सिलेबस है। CUET UG इज़ more focused on the grammatical things, okay, and reading comprehension, basic English, and whereas CUET PG is more focused on your लिटरेचर नॉलेज, बिकॉज आप जब CUET PG के लिए जाते हो तो ये अज्यूम किया जाता है, और अज्यूम क्या यही चीज़ है कि आप CUET UG पढ़ के आते हो, BA इंग्लिश करके आते हो। तो BA इंग्लिश जब आप करके आ रहे हो इंग्लिश लिटरेचर से तो आपने बहुत सारी चीज़ें लिटरेचर की पढ़ी होगी। तो अब आपका टेस्ट किससे लिया जाएगा, जो आपने अभी तक BA इंग्लिश में पढ़ा, तो वो CUET PG के एंट्रेंस में पूछा जाएगा। डिटेल सिलेबस का मैं वीडियो डालूंगी। सेकेंड पार्ट, इफ़ यू आर आस्किंग मी द सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन BA इंग्लिश का आप चाह रहे हो कि सिलेबस, सो अब क्या है, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का अपना अपना अलग अलग सिलेबस होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया BA इंग्लिश जहाँ भी हो रहा है सबका सिलेबस सेम है, नो।
सबके सिलेबस डिफरेंट होते हैं। तो आप ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कर सकती हूँ कि मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करके उनके जो बीए इंग्लिश के सिलेबस है वो डिस्कस कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट सेम गोज़ फॉर एमए इंग्लिश। ओके, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के अपने अलग अलग सिलेबस होते हैं। ओके, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, और डिटेल में मैं वीडियो डाल दूँगी। ओके, now next, ma'am, how can we get notes for entrance exam PG? Are you starting the channel for this? Yes, of course. So, notes for entrance exams UTPG. Okay, I got it. So, मैं अब आपकी ये क्वेरीज देख के मैं अब क्या करूँगी, आई जस्ट डिस्कस द CUET PG syllabus. I'll make one video on CUET UG syllabus, okay, sorry, PG syllabus, and then I'll go on discussing the further topics of CUET PG. मैं अलग अलग वीडियोस डालूंगी CUET PG से रिलेटेड कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा भी दूंगी। ओके, सो दैट यू गेट एन आइडिया। आपको जितना गाइड मैं कर सकूं मैं आपको गाइड करूंगी CUET PG के लिए। सो येस, आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल फॉर all of these things. Okay, so wait for it. I'll be putting videos related to CUET PG as well. Whatever queries you have, please put those queries in the comment section. Okay, next, let me check. What do we have? Um, Most of the students have less stage courage if you include the art of public speaking that is on stage. Okay, again, public speaking, another important topic that comes under again communication and spoken English. So I get it. Yes, it is, as I said, that English is not our first language, first of all. Second thing, whether it's Hindi or English or Marathi or Gujarati or whatever language, whatever your first language is, when you are asked to speak in front of number of people, okay, when you are asked to speak on stage, आप घबराओगे ही, you will be afraid, you will be nervous, you will be anxious, no matter what language it is, है ना। आपका खुद का रीजनल लैंग्वेज भी होगा, बहुत अच्छे से आती होगी, फिर भी आप घबराओगे, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट देयर कि आप खुद को कितना कॉन्फिडेंट बनाते हो, आप कितना अपने पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब आप अपने खुद की रीजनल लैंग्वेज में जब घबराहट हो सकती है इतने लोगों के बीच में बोलने में, तो इंग्लिश जो हम सीख ही रहे हैं, है ना, और जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उस भाषा में बोलने में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, आई एग्री, बट कैन दैट बी इम्प्रूव्ड? यस। क्या वो परफेक्ट हो सकता है? परफेक्शन का क्या डेफिनेशन है? हम इंग्लिश में यही बोलते हैं हमेशा, दैट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ बेटरमेंट। कभी भी इंग्लिश में या लैंग्वेज में आपको फुल फुल मार्क्स नहीं मिलता, अगर मिल रहा है तो इज समथिंग फिशी, ठीक है, तो फुल मार्क्स नहीं मिलता है, क्यों? बिकॉज वी थिंक कि अगर आपने इस लेवल का अच्छा लिखा है तो हो सकता है मैं कुछ और पढ़ूँ तो मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे, और कुछ और पढ़ने जाऊँ तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे। सो एवरी टाइम यू रीड और यू सी एनीथिंग, so there's a possibility that the next work is better than the other one. आप किसी को एकदम बेस्ट नहीं बोल सकते, so there is always a scope of betterment. तो क्या आप परफेक्ट हो सकते हो बोलने में? Might be yes, ओ might be yes, might be no. I would say perfection is a myth, but we should always crave for it.
है ना? So yes, we can definitely improve that, है ना? कैसे improve करेंगे? By working on that. So yes, um, I can see that there are many questions on spoken English. केवल यहाँ ही नहीं, यहाँ तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, बट इन जनरल भी मेरे साथ बहुत सारे क्वेरीज आ रखे हैं स्पोकन इंग्लिश को लेके. सो आई कीप दैट इन माई माइंड एंड try to do something about it as well. Then पैसेजेस एंड ग्रामर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ? ओके, बेसिक ग्रामर एंड पैसेजेस. परफेक्ट. सो अगर आपको एकदम अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो देयर आर वेरियस अदर वीडियोज़, माई वीडियोज़ on YouTube on different channels. You can search that also, putting my name. Otherwise, wait for a while and then CUET UG. जब CUET UG से रिलेटेड मैं चीज़ें डिस्कस करूँगी तब मैं ये सारी चीज़ें पैसेजेस ग्रामर ये डिस्कस करूँगी बिकॉज CUET UG का सिलेबस यही है. ओके. And for passages, I would say that try to read short stories. ठीक है. हर दिन एक शॉर्ट स्टोरी, एक पेज की, दो पेज की पढ़ने की कोशिश करो धीरे धीरे. एंड ट्राई टू लर्न डिफरेंट मीनिंग्स. आपने एक पैसेज पढ़ा, ओके, एंड क्या हुआ, उसमें कुछ दो या तीन नए वर्ड्स मिल सकते हैं. प्लीज़ अंडरलाइन दैट, मेक अ डायरी, मेक अ नोट ऑफ इट, उसके मीनिंग्स लिखो. धीरे धीरे यू विल गेट बेटर. ओके, better with that. Next, I think, yeah, for this video after so long, I mean, this will be fine. जितना मैंने address कर दिया है question. Anything, any important thing that is left? Mm-mm-mm. Okay, I think this much is fine. So these were the questions. These were the selected questions that I had kept to address, and I can see that there are many of you who need help with CUET PG, especially, and then CUET UG, and then spoken English. So there are three things: CUET PG, CUET UG, and spoken English. So now I will be planning accordingly कि अब क्या करना है आपके लिए, मुझे कैसे प्लान करना है, किसको कब एड्रेस करना है, एंड आगे कैसे बढ़ाना है. बट ये काम मैं अकेले नहीं करने वाली हूँ, हम दोनों साथ में करेंगे. तो आपको जो भी चीज़ें पूछनी है और इन सब चीज़ों से रिलेटेड, प्लीज़ पुट दैट in the comments and also share with other people who are in need of this, so that they can also share their doubts or whatever confusions they have or questions they have, so that accordingly I can make videos. ठीक है. And now I'll try कि next video I come up with will be discussing about CUET PG English syllabus. Okay, CUET PG English syllabus हम उस पर डिस्कशन करेंगे. एंड आफ्टर दैट CUET UG English syllabus. हम पहले इतना करते हैं एंड देन उसके आगे फिर और बातें करेंगे. ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर्स. इन डेप्थ मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल. अब पहली वीडियो में सब कुछ डिटेल में कर दूँ तो आप बोर हो जाओगे, है ना. तो मैं और वीडियोस डालूंगी. अभी मैंने एक सुपरफिशियल आंसर दे दिया है, एक ओवरव्यू दे दिया है ना. एंड अब हम आगे फिर देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है. ओके. So yes, I'm I can't say that how much happy I am, how happy I am right now, speaking to you all after so long, and I hope that I'll get the same love and support that I have been getting throughout. And yes, I got indulged into other important works as well. And as I have told you, right now, currently, I'm working as an assistant professor. So it's been a hectic
um, time, or it has all like I've been very much involved there. So it's been difficult for me to be consistent here on YouTube, but now I will be. I'll try my best to be consistent here and help you all as much as I can. And there were questions regarding net set and everything, how to apply for assistant professor, how to become an assistant professor as well, I remember. So I'll make a separate video for that as well. So अब वीडियोस आते रहेंगे, आप शेयर करो, कमेंट करो एंड मुझे बताते रहो कि आपको कैसा लगा, कैसे वीडियोस चाहिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, मज़ा आता रहेगा, मैं भी कंसिस्टेंट रहूँगी और आप तो हो ही साथ, है ना? और बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। चलो, बाय बाय, सी यू ऑल।